Yes, friends, good morning to all of you. Friends, we have done questions. You know that we have started with the topic how to calculate the concept of goodwill that we have started in the last period. And we have done illustration number 10, illustration number 11, and illustration number 12. Hope you have done this practice in a better way. So today we have to take next three more sums. Let's see the 13 question. Ready? 13 question. X and Y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4 is to 3. They admitted Z as a new partner on 1/4/16. At the time of admission of a Z, balance of capital of X and Y is 30 and 40 respectively. They decided their new profit and loss ratio is 2 is to 4 is to 1. That is the new profit and loss ratio. Z brought rupees 50,000 as his capital and his share of goodwill in cash. Right? And his share of goodwill in cash. On the date of admission of Z, goodwill of the firm is valued as 84,000 and goodwill appeared in the balance sheet of X and Y is 35,000. So friends, we are starting with the topic. You know that the first thing we have to calculate is the new ratio. So here in this question, new ratio is mentioned to us. The new profit and loss ratio is given to us, that is 2 is to 4 is to 1. Second part, you know what we have to find? Yes, second is we have to find the sacrifice ratio. So what is the formula? Old ratio minus new ratio. So take the first name. First name comes X sacrifice ratio. What is the old? 4/7 minus 2 plus 2 plus 4, 6 plus 1, 7. So again comes 2/7. So no need of denominator, nothing. So 2/7. After X comes Y sacrifice. That is 3/7. That is old minus 4/7. Right? So 3 minus 4. Right? No? So it comes minus 1/7. Right? And then comes the Z. Z actually we are giving the share, that is 1/6. 1/7. Yes. Right? So here what happened? X is sacrificing 2/7 while Y is gaining. Y is gaining. Right? And Z also gains in 1/7. Okay. So now let's see. Right? So now it's a new topic for us. Here its gaining is there. So we have to be very careful how to do this particular sum because there are two partners who is gaining now here also, right? Because Z is a new one, or we can take in that way also 0 minus 1/7. It comes in minus only. Clear? So now how to do this particular sum? The first part is we have to find the goodwill. What they want to say? Goodwill of the firm. So what I have to write? The third one, third topic. Total goodwill is 84,000. So now the first I will calculate Z share. 84,000 into 1/7 comes to 12,000. That also he has to bring. After Z, it is also clear that Y is also gaining. So Y is also bringing. That is 84,000 into 1/7.
So y is also giving how much? 12,000. So this is the new part for us. So total goodwill comes to 84,000. Z share, that is 84 into 1 by 7, 12,000. Y share 84 again into 1 by 7, it comes to 12,000. So now let's see the how to do this particular sum. Pass the necessary journal entries. Okay. So first journal entry we are going. You can see here goodwill appeared in the books how much? 35. So first of all, you know that we have done this type of point. If goodwill is there, the first thing we have to just write off. So first entry, goodwill has which balance? Goodwill has the debit balance. So it will credit now. So by whose name? X. Now, in which account we have to take here? X capital. It's clear given to us. So X capital account debited, Y's capital account debited to goodwill account. To goodwill account. So how much is the goodwill? 35,000. And what is the old ratio? Old ratio is given to us 4:3. 4:3. So take the calci. 35,000 into 4, 1,40,000 divided by 7. It comes to 20,000. Clear, no? How to do this, you know? 35,000 into 4 divided by 7. Second one, 35,000 into 3 divided by 7. This is the first point. Now the second. Z brought 50,000 as capital and share of goodwill in cash. So let's see the second. Cash account debited. 50,000 is capital, and what is the share of goodwill? It's 12,000 of Z. So 50 plus 12, right? It comes to 62,000. To Z's capital account, it comes to how much? 50,000. And to premium for goodwill is bringing the cash for goodwill. So premium for goodwill account, it comes to 12,000, 12,000. Clear? So cash account debited 62,000, to Z's goodwill capital 50,000, to premium for goodwill comes to 12,000. Now the third and the most important part. Now premium already be credited, हो चुका है. अब क्या करेंगे? Debit. So premium for goodwill account debited 12,000. Actually देखे जाए तो ये किसका है? Z का है. And you can see is that Y is also gaining. ये रेशियो में हमने जब किया तो हमने क्या देखा? Y को भी फायदा हो रहा है. Y is also gaining from it. तो वो भी तो लेकर आएगा पैसा. इसलिए हम क्या लिखेंगे? Y is कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो कि वो पैसा लेकर आ रहा है, उसको लेके आना पड़ेगा. और ये पूरा पैसा किसको जाएगा? टू एक्स को लेके देना है. टू एक्स कैपिटल अकाउंट 24,000. आया समझ में आपको? ये पूरा अलग कंसेप्ट था. बराबर. तो वापस एक बार देख लेते. न्यू रेशियो 2:4:1. उसके मदद से हमने ढूंढा सैक्रिफाइस रेशियो जो 2/7, फिर -1/7, फिर वापस -1/7. टोटल गुडविल 84,000, जिसमें Z का शेयर कितना निकाला हमने? 12,000, और Y का भी उतना निकला. दैट इज बाय द फर्स्ट एंट्री. कैश पहली एंट्री, X कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल. बराबर. फिर सेकेंड में कैश अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल टू प्रीमियम. फिर प्रीमियम और Y क्यों? क्योंकि Y भी तो ला रहा है पैसा. Y's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 12 टू X कैपिटल 24,000.
क्लियर? चलो, नाउ कम्स इलस्ट्रेशन नंबर 14. क्या लिखा है देखो, रीड करो एक बार. A, B, and C are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2:1. They admitted D as a new partner. D को नया पार्टनर बनाना है. D brought 80,000 as capital. D कितना लेकर आया? 80,000 लेकर आया. And 60,000 as goodwill in cash. Goodwill भी कितना लेकर आया? 60,000. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ए बी सी डी इतना दे रहे 4:3:2:3. ऑल्ड पार्टनर्स विड्रॉ 50% शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. ये एक नया पॉइंट है. चलो देखते हैं इसका कंसेप्ट अब ये कैसे करना है. बोलो, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? यस, न्यू रेशियो कितना दे के रखा है? 4:3:2:3. ये दे के रखा है. सेकेंड पार्ट हमें करना है, दैट इज सैक्रिफाइस रेशियो. व्हाट इज द फॉर्मूला? ओल्ड माइनस न्यू. तो चलो, ए बी सी. ओल्ड एक साथ लिख रहा हूं तो क्या थोड़ा इजी. 3/6, 2/6, 1/6. न्यू 4 + 3 7 + 2 9 9 + 3 12. 4/12, 3/12, 2/12. चलो, 6 2s are 12 1s are 2s are 1s are 3 2s are 6 2 2s are 4 2 2s are 2 minus 2 1s are 2 3 1s are 4 1s are. Finally 6 minus 4 2/12 बराबर 4 minus 3 कितना? 1/12. 2/12, 0/12. तो ये क्लियर हुआ कि सैक्रिफाइस दो लोग कर रहे हैं. सैक्रिफाइस रेशियो दो लोग कर रहे हैं, 2:1. सी कोई सैक्रिफाइस कर नहीं रहा है. थर्ड वन क्या लिखा है? They admitted D as a new partner. D brought 80,000 as capital and 60,000 as goodwill in cash. क्लियर बोल ही दिया है कि 60,000 गुडविल लेकर आना है. ठीक है, तो चलो जर्नल एंट्री पास करेंगे हम इसका. हेडिंग दो जर्नल एंट्रीज. राइट, चलो हेडिंग दो. फर्स्ट जर्नल एंट्री, पैसे लेकर आना है. तो व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश अकाउंट डेबिटेड 1,40,000. 80 + 60 2, जिसमें से 80,000 क्या है? कैपिटल है. तो किसके नाम पे जाएगा ये? टू, हु इज द न्यू वन? डी. टू डीज कैपिटल, ये उसके नाम पे जाएगा. 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये 60,000. नंबर 2, अब ये प्रीमियम को ट्रांसफर करेंगे. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू किस किस को देना है? हमें यहाँ पे किस किस को देना है? जो सैक्रिफाइस कर रहा है. तो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल. और कौन सा रेशियो? 2:1. तो करो 60 × 2, 120 डिवाइडेड बाई 3. तो ये जाएगा 40,000 और ये इसको मिलेगा 20,000. तीसरा, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ 50% विड्रॉ कर रहे हैं, मतलब वापस ले जा रहे हैं. तो अब उनको मिलेगा. तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 20,000. बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 10,000. ए को 20,000 मिल रहा है, बी को 10,000 मिल रहा है. टू कैश, बराबर कैश लेके जाएंगे ये लोग.
20 plus 10, 30,000. बराबर. तो व्हाट वी हैव लर्न इन द 14 क्वेश्चन, ओल्ड रेशियो देके रखा है, न्यू रेशियो देके रखा है. विद द हेल्प ऑफ इट वी हैव फाइंड द सैक्रिफाइस रेशियो. कैश लेकर आने को बोला है, 80,000 कैपिटल का है और 60,000 गुडविल का है. सेकेंड में प्रीमियम के हिसाब से हमने काट दिया. तीसरे में हमने विड्रॉ करने को बोला है, इसलिए एज कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश. बराबर. चल आगे देखते हैं. A and B are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. The admitted C as a new partner for 1/6 share of profit. C को नया लेकर आना है, 1/6 देना है. C brought 1 lakh in cash as capital. C 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आ रहा है. बढ़िया. But he is not able to bring a share of goodwill in cash. वो लेके नहीं आ पा रहा है उसका गुडविल का. बराबर. The goodwill of the firm is valued at 3 lakhs at the time of admission of a new partner. Pass entries. इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. First of all, we have to find the new ratio, and then we have to find the sacrifice ratio. अब इसमें कौन कितना देगा इसके बारे में भी कोई कुछ बोल नहीं रहा है. So what we can take, let profit be 1. प्रॉफिट कितना लेना है, 1 लेते हैं. नए बंदे का नाम सी, सी का शेयर 1/6. तो रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/6, 5/6. अब ए का, बी और सी न्यू शेयर ढूंढने जा रहे हैं. तो जो भी मिलेगा 5/6 में से मिलेगा दोनों लोगों को. सी का तो ऑलरेडी फिक्स है 1/6. तो 5/6 इंटू 3/5, 2/5, 30 करना है. तो ये 5/5. तो 5 3s are 15/30, 10/30, 5/30. So our new ratio comes to us 15:10:5. That is 1, 2 and 3. So new ratio comes to us 3:2:1. ये पहला हुआ. अब सैक्रिफाइस रेशियो. सैक्रिफाइस रेशियो आपको याद रखना, जो ओल्ड है वही निकल कर आता है, 3:2. अब गुडविल ऑफ द फर्म, थर्ड टॉपिक. ये सेकंड हुआ, फर्स्ट हुआ. टोटल गुडविल 3 लाख. सही है. अब क्या लिखा है, ही इज नॉट एबल टू ब्रिंग. चलो जो भी है, सी का शेयर तो ढूंढना पड़ेगा. 3 lakhs into 5/30 यानी 1/6 ले लेते हैं. 5/30 बोलो या 1/6, 50,000. इतना पैसा उसको लेकर आना है. याद है वो पैसा लेकर आता है तो 2 एंट्री पास करते हैं. एक हम करते हैं कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, याद है. और दूसरा हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स. ठीक है ना. सो रेडी फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. So goodwill of the firm is valued at 3 lakhs at the time of admission of a new partner. Pass necessary journal entries. So 50,000 already अपना हो चुका था, right? So now let's come the topic 50,000 के बाद how to distribute this one. So C brought 1 lakh as cash is capital, but he is not able to bring his share in goodwill in cash. तो पैसे लेके आने के पास नहीं है उसके पास. Okay, I'm just rubbing it out. So journal entry. So let's see the first journal entry. वो कितना लेकर आ रहा है, 1 lakh as कैपिटल लेकर आ रहा है. तो फर्स्ट एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट दैट इज ऑफ 1 lakh. सही है. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड है कि ट्रांसफर करना है हमें. वी हैव टू ट्रांसफर दिस नाउ.
सो 50,000 लेके नहीं आ रहा है, सो एंट्री अब क्या करेंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे क्या आता था, प्रीमियम आता था, अब वो पैसे लेके नहीं आ रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000, और ये पैसे किसको देंगे हम, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और ये लिखेंगे हम 30,000 और ये 20,000। पता चल रहा है आपको, सीज कैपिटल 50,000 टू एस कैपिटल 30,000 टू बीस कैपिटल 20,000। इस तरह से हम इसको यहाँ पे बताएंगे, बराबर। तो ये हुआ अपना टॉपिक, ओके। चलो, सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा जो है उसको एक बार रिवीजन करेंगे हम। 13 क्वेश्चन देखो कैसे किया हमने। X and Y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 4:3. They admitted Z as a new partner on 1/4/16. At the time of admission of Z, balance of capital of X and Y are 30 and 40 respectively. They decided their new profit and loss ratio to 2:4:1. Z brought rupees 50,000 as his capital and share of goodwill in cash. So what we have done, goodwill already book में कितना है, it is in the book 35,000. So new ratio comes to us 2:4:1. Sacrifice ratio is old minus new हमने किया, तो x का आया 2/7, y का -1/7 और z का भी -1/7। फिर थर्ड है टोटल गुडविल इज इक्वल टू 84,000, so z share is equal to 84,000 into 1/7, तो 12,000 आया। 84,000 इंटू वापस क्यों 1/7, क्योंकि y का शेयर है। फिर इसकी जर्नल एंट्री हमने पास की, दैट इज x कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, y कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, यानी गुडविल को हमने क्या किया, राइट ऑफ किया पहले तो। दूसरा हमने क्या किया, हम वो जो कैश है वो लेकर आए, मतलब 50,000 प्लस 12,000, और z में कितना ट्रांसफर किया 50,000, और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर गए 12,000, बराबर। थर्ड में प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिट हुआ है वो हम डेबिट करेंगे, वाइस कैपिटल 12,000 टू एक्स कैपिटल 24,000। ये हमारा 13 क्वेश्चन था, तो 4 क्वेश्चन हुए अपने अभी तक। ये 5th क्वेश्चन, इसमें क्या किया हमने देखते हैं। A, B and C are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:2:1. They admitted D as a new partner. D नया पार्टनर है। D brought 80,000 as capital, 80,000 लेकर आया, and 60,000 as goodwill in cash. New profit and loss sharing ratio है ABCD 4:3:2:3. Old partners withdraw 50% of their share of goodwill in cash. Pass entries. तो सबसे पहले तो न्यू रेशियो 4:3:2:3. सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, ए का 3/6 माइनस 4/12, बराबर। तो 6 माइनस 4/12 2/12। बी का भी वैसे ही 2/6 माइनस 3/12, 4 माइनस 3/12 1/12। सी का 1/6 माइनस 2/12, 2 माइनस 2/12 0/12। तो सैक्रिफाइस रेशियो कितना आ रहा है अपना 2:1। अब आगे बढ़ते हैं, कैश कितना लेकर आना है 80 और 60। कैश अकाउंट डेबिटेड 80 प्लस 60 करे तो 1,40,000 टू डीज कैपिटल, डी में कितना ले लिया 80,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो कितना है 60,000। नंबर 2, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू एस कैपिटल कितना 40,000 टू बीस कैपिटल 20,000। थर्ड में
एस कैपिटल अकाउंट 20, क्यों विड्रॉ बोला हुआ है इसलिए एस कैपिटल में 20,000, बीस कैपिटल में 10,000 और कैश में कितना लेंगे 30,000. इटरेशन 15, ए एंड बी आर द पार्टनर्स, रेशियो क्या है 3:2. They admitted C as a new partner for 1/6 share of the profit. C brought 1 lakh cash as capital, but he does not able to bring goodwill. ये पहली बार ऐसे आया है कि जब नया पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, अगर लेकर आता है तो प्रीमियम में जाता है. The goodwill of the firm is valued at 3 lakhs. राइट, तो याद है कैसे किया हमने, ये 50 कैसे आया अपना, 50 कैसे आया अपना 3 lakhs into 1/6, तो ये 50,000 आया. तो फर्स्ट एंट्री वो कैपिटल लेकर आ रहा है, उसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 lakh. सेकेंड में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 50,000 बराबर. तो एस कैपिटल अकाउंट कितना ले लिया 30,000 और 20,000 बराबर. तो इस तरह से ये टॉपिक हुआ अपना. नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 16. एक बार रीड कर लेते हैं. ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit and loss in the ratio 2:1. They admitted C as a new partner for 1/3 share in the profit of the firm. C brought 70,000 as capital and 30,000 as a premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is 1,20,000 at the time of the admission of a new partner. Goodwill value इतना है. At the time of admission, goodwill appeared in the balance sheet is how much 1 lakh. goodwill appeared in the books कितना है 60,000. तो पता है कैसे करना है, पहले तो 60,000 को राइट ऑफ करना है, फिर ये 1,20,000 को पहले 60,000 को राइट ऑफ करेंगे, फिर ये 1,20,000 को 1/3 से डिवाइड करेंगे, तो वील गेट 40,000. अब उसमें 30,000 वो लेके आ रहा है, बाकी का 10,000 नहीं ला रहा है, तो ये उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा. राइट, टफ समय मतलब. तो एक इलस्ट्रेशन 16 एक बार थोड़ा रीड करो, टेस्ट इलस्ट्रेशन है तो आप देख सकते हो. 17 में दिया है ए एंड बी पार्टनर है 3:2, कैपिटल 1 लाख और 1.5 लाख दिया है. बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व भी दिया है. सी ब्रिंग्स 1 लाख, ये थोड़ा इजी लग रहा है, कैपिटल लेकर आना है, उसके हिसाब से हम एंट्री पास करेंगे. राइट, तो फ्रेंड 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है प्रैक्टिस के लिए, वो एक बार अच्छी तरीके से आप इसे रिविजन करो. तो आज हमने किया इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15. ओके, सो अच्छी तरीके से टोटल 6 सम्स हुए अपने. तो प्लीज प्रैक्टिस इन अ बेटर वे. थैंक यू.